This class we are going to study about ornithophily. So ornithophily is also a type of zoophily just like entomophily which we had studied in our last class. That is zoophily का जो टाइप था, एक टाइप हमने पढ़ा था that is entomophily जिसमें कि insects के through pollination होता है. And in this class we are going to study about bird pollination, that is pollination through birds. And this phenomenon, that is pollination through birds, is called as ornithophily. So first of all we have to see that there is some structural modification in terms of birds who are doing bird pollination. That is यहाँ पर normal birds का जो beak होता है और वैसे birds जो कि pollination करते हैं, in these birds there is structural modification of the beak to suck the nectar or rather to perform pollination through different means in different flowers. तो यहाँ पर पहला मॉडिफिकेशन जो बर्ड में हमने देखा है, यानी कि अभी तक हमने जो एंटेमोफिली पढ़ा था वहां पर फ्लावर में मॉडिफिकेशन था पॉलिनेट होने के लिए. यहाँ पे बर्ड के बीक में यानी कि पॉलिनेटर में भी यहाँ पर मॉडिफिकेशन है. नॉर्मली द प्लांट विच वाज गेटिंग पॉलिनेटेड दैट हैड स्ट्रक्चरल और एनी सॉर्ट ऑफ मॉडिफिकेशन, बट हियर द पॉलिनेटर दैट इज द बर्ड इज आल्सो हैविंग अ सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन. So we know that what is corolla. So corolla is a hole of petals, that is सबसे बाहर वाला होल होता है calyx and then we have corolla. तो ये जो corolla है इसके अंदर होते हैं petals. तो यहाँ पर petals का जो arrangement होता है वो एक ट्यूब की तरह होता है या एक funnel की तरह normally होता है, which we are gonna see here. तो अगर जो कोरोला का ट्यूब है यानी कि जो पेटल्स का ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है वो तो लंबे होंगे, तो बर्ड्स का अगर शॉर्ट बीक होगा तो बर्ड्स पियर्स करेंगे फ्लावर को, तो फ्लावर डैमेज हो सकता है. इसीलिए यहाँ पर बर्ड्स के पास काफी लंबे लंबे बीक्स होते हैं. तो वैसे बर्ड्स जो कि नॉर्मली पॉलिनेशन करते हैं, these have pretty longer beaks, longer than the corolla tube. That is, the length of the corolla tube would be much lesser as compared to the length of the beak of the bird. So that is one feature of bird pollination, that is the structural modification in birds. Now we can come to the two very famous birds in the world in the case of bird pollination, and these are sunbirds, and these sunbirds are found in Asia and Africa region, and these have certain species which they pollinate. And also there is a very famous bird, it is called hummingbird. It is found in America. So hummingbird is probably the smallest bird in the world, and it has perhaps the highest heartbeat also. We are going to see about its heartbeat in circulatory system. So this hummingbird pollinates flowers in the case of in America, and the sunbird performs pollination in Africa and Asia region. But these two have very different methods. If you see, sunbirds pollinate by the flowers while resting over the shoots which bear flowers. यानी कि जो ये sunbirds होते हैं, that is these in the Africa Asia region, यहाँ पर ये जो birds होते हैं, ये जो shoot होता है जिस पर कि flower होता है उस पर बैठकर pollination करते हैं. लेकिन जो दूसरा वाला है that is the hummingbird. Hummingbird hovers over the flower, यानी कि flower के ऊपर वो उड़ते रहेगा, flower पर या उसके part पर बैठेगा नहीं. लेकिन जो sunbird है, सनबर्ड क्या होता है कि जो शूट पे फ्लावर होता है उस शूट पर बैठता है, उस ट्विग पर, उस पेडिसल पर बैठता है जिस पर कि फ्लावर होता है. लेकिन जो हमिंग बर्ड है वो उड़ते रहेगा, धीरे धीरे वो उसी पार्ट पर होवर करने का मतलब होता है कि उस पर रेस्ट नहीं करता है, बट वो फ्लाइट मोड में ही रहता है और वो फ्लाइट मोड में ही सक करता है फ्लावर से नेक्टर. So these are the two different methods, यानी कि ये दोनों birds pollinate करते हैं एशिया अफ्रीका and this in the अमेरिका region, लेकिन दोनों में डिफरेंस है. हमिंग बर्ड उस पर बैठता नहीं है, उड़ते हुए वो उस पर पॉलिनेट करेगा, और जो दूसरा वाला है दैट इज द सन बर्ड, वो उस पर बैठेगा, फ्लावर के जो शूट होंगे उस पर बैठेगा और उस पर बैठ के पॉलिनेट करेगा. नाउ दोनों के अपने अपने स्पीशीज हैं. कुछ जैसे कि हमिंग बर्ड है, ये हेलिकोनियाज को पॉलिनेट करता है, और जो दूसरा वाला है एंड दैट इज द सनबर्ड, इट पॉलिनेट्स सिटनस सैंग्विनस. सो यू मस्ट नो दैट दिस इज अ पैरासाइटिक प्लांट. ये रूट्स में पैरासाइट की तरह बिहेव करता है. इट इज अ पैरासाइट. Anyway, parasite is not required over here, but I have just given an information. So hummingbird का pollinated species ये है और sunbird का pollinated species Citinus sanguinus है. Now we come to some larger sized birds.
यानी कि हमिंग बर्ड और सनबर्ड दोनों बहुत ही छोटे साइज का बर्ड्स होता है, स्पेशली द हमिंग बर्ड, इट इज प्रोबेबली द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। तो ये दोनों स्मॉल साइज के हैं, तो ये पॉलिनेशन कर रहे हैं। इनके साथ साथ थोड़े से बड़े साइज के भी बर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल क्रोज, बुलबुल्स, पैरट्स एंड मैनस। तो दीज आर वेरी कॉमन स्पीशीज इन इंडिया ऑल्सो। तो यहाँ पर आपने बहुत कॉमनली इन बर्ड्स को देखा होगा अपने सराउंडिंग्स में। तो ये कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो कि पॉलिनेशन करते हैं, बट दीज आर मच लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू सनबर्ड एंड हमिंग बर्ड। तो ये थोड़े से बड़े साइज के होते हैं। ऑब्वियसली दीज आर नॉट वेरी लार्ज जस्ट लाइक वल्चर और हॉक और ऑस्ट्रिच और एमू, बट स्टिल दीज आर लार्जर देन सनबर्ड और हमिंग बर्ड। नाउ वी कम टू द अदर पॉइंट्स, दैट इज ऑर्निथोफिली इज क्वाइट लेस। ऑर्निथोफिली भी एक तरह का जूओफिली है, एंटेमोफिली भी एक तरह का जूओफिली है, लेकिन एंटेमोफिली बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली काफी रेयर होता है एज कंपेयर टू एंटेमोफिली। तो ऑस्ट्रेलिया में अप्रोक्सीमेटली 100 स्पीशीज के आसपास ही हैं जिनमें की एंटेमोफिली, जिनमें की ऑर्निथोफिली शो किया जाता है। सो यू कैन इमेजिन कि कितने कम नंबर ऑफ प्लांट्स में ऑर्निथोफिली होता है। सो इट इज क्वाइट रेयर। तो जिस तरह हमने बाकी टाइप के पॉलिनेशन में भी फ्लावर के फीचर्स देखे थे, उसी तरह हम यहाँ पर भी देखेंगे कि फ्लावर में कौन कौन से फीचर्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर फ्लावर्स में बहुत बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नेक्टर बनता है। यहाँ पर इतना ज्यादा नेक्टर बनता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि अगर उसके फ्लावर को आप शेक करें तो नेक्टर ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरने लगेगा बाहर, इतना ज्यादा यहाँ पर नेक्टर होता है। और यहाँ पर नेक्टर में वाटर काफी ज्यादा होता है, और वी हैव ऑलरेडी नोन कि जो नेक्टर होता है वो क्या होता है। सो नेक्टर इज वेरी मच अबंडेंट इन शुगर, इट इज अ शुगरी सॉल्यूशन सॉर्ट ऑफ अ थिंग। तो नेक्टर एक शुगरी सब्सटेंस होता है, यहाँ पर उसमें वाटर काफी ज्यादा होता है, और जो नेक्टर का प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पर काफी ज्यादा होगा एंटेमोफिलस फ्लावर से कहीं ज्यादा। यानी कि जो फ्लावर एंटेमोफिलस होता है, यानी कि इंसेक्ट से पॉलिनेटेड होता है, उन फ्लावर से बहुत ज्यादा नेक्टर के यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। और अगर नेक्टर कम प्रोड्यूस हो रहा है तो फ्लावर के अदर एडिबल पार्ट्स होंगे, यानी कि फ्लावर में जो दूसरे पार्ट्स होंगे, अगर मान लीजिए नेक्टर कम प्रोड्यूस हो रहा है तो वहां पर फ्लावर के दूसरे पार्ट्स एडिबल हो सकते हैं। हो सकता है पॉलेंस एडिबल हो, या कोई और जो फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है, 4 होल्स होता है फ्लावर पे, उनमें से कोई स्ट्रक्चर एडिबल होगा। तो दैट इज दीज आर फ्लोरल रिवॉर्ड्स टू द बर्ड्स। वो बर्ड्स जो कि पॉलिनेशन के लिए आते हैं यहाँ पर, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो नेक्टर सक करने आते हैं, या फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एडिबल पार्ट्स को खाने आते हैं, लेकिन फ्लावर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पॉलिनेशन करने आ रहे हैं ना, तो उनको ये फ्लोरल रिवॉर्ड्स होता है। सो दीज एडिबल पार्ट्स इन द केस ऑफ ऑर्निथोफिलस आर फ्लोरल रिवॉर्ड्स। और ऑल्सो जो नेक्टर होता है वो तो फ्लोरल रिवॉर्ड होता ही है, वो तो सबको पता ही है। आपने पहले भी देखा था कि नेक्टर और एडिबल पॉलन जो होता है वो फ्लोरल रिवॉर्ड्स होता है। यहाँ पर एक डिफरेंट फ्लोरल रिवॉर्ड है, दैट इज द एडिबल पार्ट। नाउ वी कम टू द कलर ऑफ द फ्लावर। तो हमने एंटेमोफिलस फ्लावर में देखा था कि वो काफी ब्राइटली कलर्ड होते हैं जनरली, तो यहाँ पे भी सिमिलर है, यहाँ पे भी काफी ब्राइटली, दैट इज ब्लू, रेड, ऑरेंज, येलो। यू मस्ट बी नोइंग दैट दीज आर प्रिटी ब्राइट कलर्स। And now we come to the other point. This is different from entomophilous flower. Entomophilous flowers में हमने देखा था कि बहुत ही अच्छा या बुरा दोनों तरह का ओडर था। फाउल ओडर भी था, जैसे कि एमॉर्फोफेरस जैसे प्लांट्स में जो कि बीटल्स या फिर अदर इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेट होते हैं, और कुछ बहुत अच्छे फ्रेग्रेंस वाले फ्लावर्स होते हैं जैसे कि रोज या फिर जैस्मिन। तो ऐसे फ्लावर्स में काफी अच्छा ओडर होता है, लेकिन यहाँ पर फ्रेग्रेंस जो होता है वो जनरली एब्सेंट होता है। इट इज नॉट लाइक, इट इज डिफरेंट फ्रॉम एंटेमोफिलस फ्लावर्स। नाउ जो यहाँ पे फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, दीज आर लेदरी, यानी कि फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं जनरली इनका जो स्ट्रक्चर या फिर इनका जो प्रॉपर्टी होता है, एक्सटर्नल सरफेस होता है, वो लेदर से मिलता जुलता है, यानी कि अगर आप इसे टच करें तो आपको लेदर वाली फील आएगी। नाउ दिस इज द लास्ट पॉइंट। तो कोरोला जो होता है वो फनल शेप, यानी कि जो पेटल्स का ट्यूब होता है वो एक पेटल का जो पूरा होल होता है वो एक फनल की तरह होता है। फनल की तरह मतलब समथिंग लाइक दिस, यानी कि यहाँ पर पेटल्स नॉर्मली जो खुले रहते हैं, हमने देखा था एंटेमोफिलस के कैटेगरी में कि जो पेटल्स होते हैं वो काफी ओपन रहते हैं, फ्लावर ओपन रहता है, लेकिन यहाँ पर जो पेटल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक ट्यूब जैसा, एक फनल जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द एंटेमोफिलस फ्लावर्स। सो दिस फीचर
दिस फीचर एंड दिस फीचर इज जनरली डिफरेंट फ्रॉम एंटेमोफिलस फ्लावर्स। बाकी तो वहां भी नेक्टर बनता था, वहां भी ब्राइटली कलर्ड था, बट यहाँ पर नेक्टर थोड़ा सा ज्यादा बनता है एज कंपेयर टू द एंटेमोफिलस फ्लावर्स। So now we have completed ornithophily and now we are going to see chiropterophily, that is pollination by bats. Now we will study about chiropterophily, that is pollination through bats. तो बैट्स जो होते हैं वो काफी हद तक नॉक्टर्नल होते हैं, दैट इज दीज आर एक्टिव ओनली ड्यूरिंग द नाइट एंड दीज कुड पॉलिनेट प्लांट्स till up to around 30 kilometers or even more than that। यानी कि बैट्स काफी दूर तक फ्लावर्स को पॉलिनेट कर सकते हैं, यानी कि काफी दूर के पॉलिन ग्रेन्स लाकर किसी फ्लावर के स्टिग्मा पर ला सकते हैं वो, दैट इज यहाँ पर पॉलिनेशन का जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है। तो बैट्स जनरली नाइट में ही एक्टिव होते हैं। तो ये जिस फ्लावर को पॉलिनेट करते हैं वो वैसे फ्लावर्स होते हैं जो खुद भी नॉक्टर्नल होते हैं, यानी कि वो फ्लावर्स नाइट में ही ओपन होते हैं। सो दीज आर सिमिलर एडेप्टेशंस इन बैट and the species which are getting pollinated with the help of bats। तो अब हम फ्लावर के फीचर देखेंगे। तो यहाँ पर जो फ्लावर्स होते हैं ये काफी डल कलर्ड होते हैं, बिकॉज यू मस्ट बी नोइंग कि जो बैट्स होते हैं वो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस को यूज करके लोकेट करते हैं किसी भी चीज को। बैट्स डू नॉट हैव वेरी गुड विजन। तो यहाँ पर बैट्स जो होते हैं ना वो ऐसे फ्लावर्स को विजिट करते हैं जो कि डल कलर्ड होते हैं। यहाँ पर फ्लावर्स जो होते हैं वो ब्राइट कलर्ड नहीं होते इन द केस ऑफ काइरोप्टेरोफिली। और दूसरी बात ये कि जो फ्लावर्स होते हैं उनसे कोई फर्मेंटिंग या फ्रूट वाला स्मेल आता है, जबकि वो एक फ्लावर है बट स्टिल वहां से फ्रूट वाला स्मेल आता है या फर्मेंटेशन वाला स्मेल आता है। एंड देयर आर अदर आल्सो फीचर्स लाइक लार्ज साइज एंड स्टाउट। तो यहाँ पे फ्लावर्स कोई छोटे फ्लावर्स नहीं होते, यहाँ पर बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं एंड दीज आर स्टाउट, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। दीज आर थिक, यानी कि दीज फ्लावर्स विच आर गेटिंग पॉलिनेटेड बाय बैट्स आर स्ट्रॉन्ग थिक, दैट इज स्टाउट एंड ऑल्सो दीज आर अ बिट लार्ज साइज्ड एज कंपेयर टू नॉर्मल फ्लावर्स। नाउ वी सी द अदर थिंग, नेक्टर प्रोडक्शन। हमने देखा था कि एंटेमोफिली से ज्यादा नेक्टर प्रोडक्शन हुआ था ऑर्निथोफिली में, और ऑर्निथोफिली से भी ज्यादा नेक्टर का प्रोडक्शन होता है इन द केस ऑफ काइरोप्टेरोफिली, यानी कि बर्ड्स के द्वारा जो फ्लावर्स पॉलिनेट होते हैं उनमें जितना नेक्टर प्रोड्यूस होता है उससे भी ज्यादा नेक्टर इन फ्लावर्स में प्रोड्यूस होता है, यानी कि नेक्टर प्रोडक्शन इज मैक्सिमम इन द केस ऑफ दीज फ्लावर्स। सो दैट वी हैव सीन। नाउ वी कम टू द स्टेमेंस एंड पॉलन ग्रेन्स। यहाँ पर एक फीचर इंपॉर्टेंट है नॉर्मल फ्लावर्स से। तो नॉर्मल फ्लावर्स में स्टेमेंस और पिस्टल्स का एक सर्टेन रेशियो होता है, लेकिन यहाँ पर स्टेमेंस बहुत ज्यादा है। तो स्टेमेंस बहुत ज्यादा है तो एंथर भी बहुत ज्यादा होंगे, एंथर बहुत ज्यादा होंगे तो पॉलन ग्रेन्स भी बहुत ज्यादा होंगे। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर स्टेमेंस एंड पॉलन ग्रेन्स आर न्यूमरस, बिकॉज ऑब्वियसली pollen grains would be produced inside the pollen sacs which are located in the stamens. So we have the examples, that is Kigelia, and we also have the Adansonia, which is the baobab tree, and we also have the Anthocephalus. So these are very common tree, that is the sausage tree, baobab tree and the kadam tree. Kadam tree is a very famous tree in India. So we are seeing now मेलाकोफिली। तो मेलाकोफिली में क्या होता है कि जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं वो होते हैं स्नेल्स। तो स्नेल्स एक्चुअली में जो मेलाकोफिली द्वारा पॉलिनेट होते हैं फ्लावर्स, वहां पर शेल्टर के लिए जाता है। तो शेल्टर कैसे मिलता है? तो यहाँ पर जो स्पेडिसेस होते हैं, सो दीज आर द टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा मॉर्फोलॉजी चैप्टर में टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में। सो दीज स्पेडिसेस प्रोवाइड शेल्टर टू द स्नेल्स। ये शेल्टर के लिए जाता है फ्लावर तक और वहां पर उसे पॉलिनेट भी कर देता है। एग्जांपल इज एरिसेनिया सेमा एंड आल्सो द एरम लिलीज, दीज आर वेरी कॉमन एग्जांपल्स। सो इसे हम कॉमनली स्नेक और कोबरा प्लांट भी कहते हैं। नाउ देयर आर सम अनयूजुअल पॉलिनेटर्स, यानी कि यहाँ पर पॉलिनेशन बहुत कॉमन नहीं है। दीज आर वेरी अनयूजुअल पॉलिनेटर्स और एक्सेप्शनल पॉलिनेटर्स। सो इनके कुछ एग्जांपल है, जैसे लेजर्ड्स के केस में कुछ ही प्लांट्स को ये पॉलिनेट करते हैं, वेरी एक्सेप्शन। दीज आर मेट्रोसेडरस एक्सेल्सा एंड फॉर्मियम टेनेक्स। सो ये दो प्लांट्स हो गए। एंड देन दिस इज द लेमुर। लेमुर इज अ प्राइमेट, इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ प्राइमेट, जिसमें कि ह्यूमंस भी आते हैं। सो ये जो लेमर्स होते हैं, लेमुर्स होते हैं, ये ट्रैवलर्स पाम, जो कि मेडागास्कर में बहुत कॉमनली पाया जाता है। मेडागास्कर अफ्रीका से जस्ट बगल में एक बड़ा सा आइलैंड जैसा है, जैसा कि इंडिया के पास में अंडमान निकोबार है, उसी तरह अफ्रीका का ही एक पार्ट एक तरह से कह सकते हैं। तो मेडागास्कर में बहुत कॉमनली ये प्लांट पाया जाता है, तो उस प्लांट को ये पॉलिनेट करता है। और लेमूर्स के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक सर्टेन टाइप का लेम्यूर होता है जो कि पाया जाता है मेडागास्कर में। इसे वर्ल्ड का
लार्जेस्ट पॉलिनेटर कहते हैं, यानी कि अगर हम जितने भी पॉलिनेटिंग स्पीशीज है, इंसेक्ट, बर्ड्स, बैट्स, लिजर्ड्स और रोडेंट्स, सभी को कंपेयर कर लें तो सबसे बड़े साइज के जो पॉलिनेटर होते हैं वो लेम्यूर्स होते हैं। सो वी कुड आल्सो राइट दीज लेम्यूर्स आर लार्जेस्ट पॉलिनेटर्स। तो सबसे बड़े साइज के पॉलिनेटर्स होते हैं ये लेम्यूर्स। उसके अलावा रोडेंट्स जैसे कि रैट्स हो गए या माइस हो गए, ये भी कुछ स्पीशीज में पॉलिनेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइकोस्पर्मम एरेनियम, तो arenarium, so these are the normal species which are pollinated by these animals. So these are not pretty common and these species are not very important regarding to NEET, because NEET के point of view से ये बहुत ज़्यादा important नहीं है, but these species are important कि ये कौन unusual pollinators होते हैं। So you must remember these three rather than these three। तो ये तो कुछ examples है जो मैंने लिख दिए हैं, but these are not that important with regard to NEET। So now we have completed our zoophily। तो हमने ज़ूओफिली में सबसे पहले एंटेमोफिली पढ़ा, फिर हमने पढ़ा ऑर्निथोफिली, काइरोप्टेरोफिली, देन वी सॉ मेलाकोफिली, एंड देन दीज आर द सम अदर अनयूजुअल पॉलिनेटर्स। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर सेल्फ पॉलिनेशन एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेशन।